So Shinde sir. Yes, sir. Yes. I am proceeding now. Okay. Yeah. So on behalf of All India Sri Shivaji Memorial Society, I welcome you all for the day 6 session based on the mathematics by Professor Pandit. He is working as an assistant professor at AISSMS Institute of Information Technology. Okay. So before proceeding, I would like to invite Maoli Madam to introduce our today's expert, Professor Pandit Shinde sir. Please, ma'am. Thank you, sir. Good morning, all. I, Mrs. Gayatri Maure, am greatly privileged to introduce today's speaker, very popular in students, Professor P.B. Shinde, sir, Assistant Professor at AISSNS Institute of Information Technology, Pune. Sir has done BSc and MTech in Mathematics with O grade from SPPU, Pune. He has 9 years of teaching experience and his area of interest is differential calculus. Sir, we are very grateful to have you here as our expert speaker. Now I request Professor Pandit Shinde sir to take a charge and start with the session. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Such a wonderful introduction. Also, thanks to Bhunesh sir. Before starting, I definitely thanks to our dynamic, respectable principal sir. They motivate me to conduct such sessions for 12th standard student, for MSAT and JEE also. And also thanks to our HOD, Dr. Vijay Musrif sir. They give a chance to me present the session on differentiation and its application for MSAT and JEE in this tips and tricks to score more marks in MSAT webinar series. Also thanks to Nigde sir. They invite me and give a chance, and his team also. So let's welcome to all the students and move towards our topics. So I welcome all the students and inform to you all that this topic is differentiation and application. I know all of you know the basic idea about how many marks in MSAT or how many marks in JEE for these two topics. Differentiation, there is a maximum 6 marks, and its application also the 4 marks. So total topic is 10 marks. So I request all of you, first we half hour just see some basic tricks in these topics, how to solve or how to cross check our answer using shortcut tricks. And next 1.5 hour or 1 hour, we check or solve some questions with you. So keep in mind, I want your participation to solve the questions. Means here not only make question, you definitely want to share your answers of the question in chat box only. And I request again all of you, is there any queries, just raise the queries. I will solve it at the end of the session in chat box. And also I request all the students, please mute your volume. So let's start. So today's topic is differentiation and its applications for MSAT. So now some derivative shortcuts to find the derivatives in MSAT, because we know there is only limited time, and within this limited time, how to solve each and every question theoretically, it will waste our time. So there is some functions wise, I will find out some shortcuts. I'm unable to make a PPTs because some lack of instruments. So I will try to explain my best using these PPTs. So first, there is a derivative shortcuts for implicit functions. Means all of you know what do you mean by implicit functions. Implicit function is nothing but some function which contains x and y and which is equal to 0 is called as implicit functions. So function of the form f of xy is equal to 0. Then question is to find dy by dx. How to find dy by dx? All of you know it is very difficult to how to find out. Means first we know the basic idea. If you want to find out the dy by dx, so write down in the form x in the form of y, and then we differentiate. Or some standards or good student know directly differentiation, but again it is arrangement and all these things wasting our time. So there is one shortcut thing is to finding the derivative of means dy by dx, derivative of y with respect to x is nothing but the in this shortcut formula in numerator minus f dash of x. F dash of x means what I'm explaining here. F dash means partial derivative of f with respect to x. What do you mean by partial? Partial is nothing but the
simply differentiate the given function with respect to x. But when we take the differentiation, keeping or treated as a y constant, में जो भी differentiation हम लेने वाले हैं उस equation का, उसमें differentiation लेते समय y को constant रखो. Whatever the derivative using x is nothing but our numerator, divided by the derivative or the partial derivative of f with respect to y. What do you mean by partial derivative of f with respect to y again? Sindhe sir. Yes, sir. You keep it very enlarge. You actually थोड़ा छोटा करिए उसको. Lower down. Okay. Yeah. Again. Yes. Okay. Now it is okay. Okay. Then f dash of y means partial derivative of f with respect to y, means differentiate the given function with respect to y. When we doing y constant, all of you know in differentiation constant treat करना मतलब क्या करना है. Here is one example I will show you here. Suppose this is a implicit function x cube plus y cube plus twice xy plus sin y minus 100 is equal to 0, and question like as find dy by dx. So again, we want to find out dy by dx. So using above formula, look at in numerator, there is a minus sign, and then we differentiate this whole function with respect to x. The derivative of x cube is 3x square, and derivative of y cube, but we with respect to x differentiate kar rahe partially, that is y constant. So derivative of y cube becomes 0. Then derivative of 2xy, 2 and y constant, derivative of x is 1, plus sin y is constant, so sin y is constant, so we become derivative again become 0 because derivative of constant becomes 0, minus 100 is already constant, so it will become, so in numerator it is only minus in bracket 3x square plus 2y. In numerator we differentiate this with respect to y partially, that is keeping, when we take the derivative keeping x constant, so therefore x cube derivative 0, y cube it is 3y square, y cube derivative is 3y square, then it is again 2 and x constant, derivative of y is 1 with respect to y, so 2x plus derivative of sin y is cos y, and the 100 again constant, so it becomes 0, so therefore in denominator it is 3y square plus 2x plus cos y, whatever the bracket there, it is nothing but the final answer dy by dx. So within 10 to 15 seconds you find out the derivative of implicit functions. There is second example also given here, and this second example, I'm not going towards second example because we move towards our main examples. There is some formula, we also discuss this formula in later. Now the next, derivative shortcuts for infinite series. It's very interesting. Infinite series means these shortcuts you use in future anywhere where you want to show your expertise, show your knowledge. So keep in mind also, you people note down these shortcuts. In future, definitely not only MSCAT or JEE, in future also you will use this when any examination will there. So the series of the form, which form? Y is equal to f of x raised to f of x raised to f of x raised to f of x, means function raised to function raised to function raised to function up to infinity times. Then in such cases, how to find out dy by dx? So definitely difficult trick. Here we use the logarithm, but using logarithm again simplification, so I use directly shortcut formula here. dy by dx, such type of function का integration क्या, sorry derivative क्या आने वाला है? It is dy by dx is equal to y square. What do you mean by y? Y is nothing but this whole function. Y square upon 1 minus log y into f dash of x upon f of x. So in such questions, you definitely show or find out first f of x. What is f of x? It's a basic function जो repeat हो रहा है, raised to, and simply use this formula or this second formula. In second formula, what happened? Just log y की value क्या होने वाली है? It is y log x, y log f of x. बाकी कोई change नहीं है. Why it is y log f of x? Look at here. I'm just explaining. ये जो infinite series थी, y raised to f of x raised to f of x raised to f of x. So जो first f of x raised to है, उसको मैंने y मान लिया because again it is goes to infinity. Again it is goes to infinity. So this y become f of x raised to y because f of x infinity कहाँ पे end हो रहा है हमें पता नहीं है. So it is again I'm doing it as a y. No problem is there. So I apply logarithm. So log y equal to y log f of x. So this is change in this log y become y log f of x. Clear. Now some examples here, short examples. Suppose there is y is equal to sine raised to sine raised to sine raised to sine raised to sine infinity times.
So therefore, the answer using this formula is simple. dy by dx is y square upon 1 minus log y into f dash. F dash means derivative of sin is cos, and upon f of x means sin x as it is. So cos x upon sin x is nothing but the cot x. So final answer is y square cot x upon 1 minus log y. And also no other form is y square cot x as it is 1 minus y log f of x means sin x. This is second example again. E raised to x raised to e raised to x, e raised to x, e raised to x infinity times. So again same formula. You cross check your answers. Also write down or note down this shortcut tricks because it is very helpful to you in future also. Now move towards the second infinite series. Infinite series like as everywhere we see such type of series in your theory paper also and your MCQs type also or your any objective type of MCQ type of questions. Y is equal to square root of f of x plus square root of f of x plus square root of f of x plus so on. Means in a square root some function plus square root some function like this. So in such series, infinite series, how to find out the dy by dx? So it is simply f dash of x upon 2y minus 1. This again using logarithm we find out. So example is suppose y is equal to root of log x plus root of log x plus root of log x. Keep in mind this root continue at the end. So in this case, what is our f of x? F of x is log x. So just putting this in this formula, f dash of x means the root of log x is 1 by x upon 2y minus 1. So it is 1 upon x into bracket 2y minus 1. Such type of question definitely will there. Again, root of sin x plus sin x. See, f dash is cos x and divide by it is 2y minus 1. It is constant means as it is wrote manually. So this is third shortcut formula to find out the derivative. Now the next derivative shortcut tricks in such type of questions. I'm just zooming out it. थोड़ा सा zoom कर रहा हूँ. Otherwise, I will change the slide presentation like this. Now it is better. Now see here. Derivative shortcut tricks in the function like as if y is equal to f of x raised to g of x means what? The function raised to function. Clear? The function raised to function. In this case, again, what are people doing? As per our basic knowledge, just use the logarithm, then differentiate, then transfer this y to RHS side, just putting the values and simplifies. Using this formula, here is some shortcut formula is there. This f of x raised to g of x means u of y actually. So derivative is dy by dx. This function write down as it is because it is a y. जैसे हम log में y वहाँ पे भेज रहे. So f of x raised to g of x. Inside the bracket, it is important. Please note down this again. G of x upon f of x into f dash of x plus log of f of x into derivative of g of x. This is the formula. It's a very, very important formula. It's very shortcut. Within 10 seconds, you just putting the values and we get the answer for your MCT or any MCQ type of example, JEE, advanced JEE, whatever is there. So therefore, just find out in using function what is your f of x, what is your g of x. I again repeat, using logarithm, you also simplify our basic rules, log, then differentiate, then simplification. But it is a shortcut trick. So f of x raised to g of x into bracket g of x upon f of x into f dash of x plus this log of f of x separate है and the g dash of x multiply to log x, log f of x के लिए. So simple question here. Just look at it is y equal to cos 2x raised to sin square x. Again basic way से हम log use करेंगे. उसके बाद simplify derivative. So just I'm write down here f of x is cos 2x हुआ और g of x is sin square x हुआ. Just putting the formula here. dy by dx is cos 2x raised to sin square x. Inside bracket g of x is sin square x, f of x is cos 2x into derivative of f dash of x means cos 2x का derivative. It is minus sin 2x into 2. So it is minus sin 2x into 2 plus log of f of x means log of cos 2x into derivative of g of x. G of x means sin square का derivative. Power multiply, it is 2. Power decreases by 1. So it is sin x and derivative of sin x is cos x. So 2 sin x cos x. I'm just simplify within one step. This as it is cos 2x bracket raised to sin square x. This minus 2 here. This sin square as it is. Sin 2x upon cos 2x is tan 2x.
plus this is sin 2x, 2 sin x cos x. Trigonometric also important role in your derivative and integration also. If you know the trigonometric formula, then and then derivative and integration very simple. Otherwise, it is very difficult. So keep in mind, in future also, the mantra of the mathematics in engineering and in anywhere, it is important thing. You must know the trigonometric formulas and how to arithmetic formulas. You must know the derivative formulas and you must know the integration formulas. How to adjust. It's a shortcut tricks everywhere. Definitely, I will share in whatever the YouTube channel I will create in next month. I will share all these tricks on this also. So this way we find out the answer. This second question. It is again tan x raised to e raised to x. This way, and this is the important question. I want to discuss this question with you because here is such type of question definitely in MSCT or sometimes maybe in JEE. Y equal to sin x raised to tan x plus cos x raised to sec x. This is the addition of two functions. Again, you people say how to find out the derivative. We know addition of derivative of two functions is a derivative and then addition. Means derivative of sin x raised to tan x plus derivative of cos x raised to sec x. And for both, we use our same formula. So we get the simple answer. You people just try to solve it because lack of time, I'm not explaining these shortcut tricks. Now, second type of derivative functions. Now, the next, I think it is a 4 types. Suppose our y means function is this form. Some constant into f of x plus b upon some constant into f of x plus some constant, that is d. So in this case, dy by dx is very simple. The determinant of this constant a, b, c, d, इसका determinant in numerator into f dash of x. F of x हम यहाँ से easily find out कर सकते हैं. Upon c into f of x plus d bracket square means denominator का square as it is. जैसे हम लोग वो formula use करते हैं u upon d का, जैसे denominator square लेते हैं वैसे यहाँ पे denominator का square. Just note down this formula also. Now the function कैसे identify करेंगे? Like this. Suppose this is a given function y equal to 2 plus 30 sin x upon 3 sin x minus 7. What happened here? I'm just rewrite this function 30 sin x plus 2 upon 3 sin x minus 7. Now tell me here what is f of x? Just compare a is 30, b is 2, c is 3, d is minus 7 and f of x is sin x. F of x is sin x. So dy by dx is 32 3 minus 7 just using this. And sin x का derivative cos x upon 3 sin x minus 7 bracket square. You simplify this, it is minus 216. Check this determinant. 30 into minus 7 is minus 210 and this minus 6. So it is definitely minus 216 cos x upon 3 sin x minus 7. So this way also you find out your shortcut derivative with the function of this form. Keep in mind, I am explaining the shortcut tricks according to given function form. जिस form में function दिया, जैसे implicit, raised to infinity times या raised to single times या this of this denominator upon numerator type. Now the next nth order derivative shortcuts means how to find out the nth order means higher order of the derivative of any function. Suppose there is f of x is equal to x raised to n. So मैंने बोला find out the n derivative. So आप लोग कैसे करोगे? Then first derivative f dash, f double dash, f triple dash, f4 dash, f5 dash, fn dash, so on. So in this there is shortcut. The r derivative. The r derivative of x is npr x raised to n minus r. npr x raised to n minus r. This way, please note down this again, how to find the r derivative or n derivative. Here is I am taking f of x equal to x raised to n is a function. Then using this, how to find out the r derivative of this npr. We know the formula for npr is n factorial upon n minus r factorial. Clear? Formula क्या हमारा npr का n factorial upon. Hello, Shinde sir. Yes, sir. Here is one suggestion in the chat box. Okay. You are going too fast. Okay, तो okay, थोड़ा sir. slow करिएगा. Yes, yes, yes. Sure, sure, sure. Okay, sir. Thank you. Okay, guys. This is nth order derivative shortcuts. जैसे मैंने बोला कि n means nth यहाँ पे लिखा है मैंने, तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव.
ओके, हायर डेरिवेटिव मीन सपोज मैंने लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन फंक्शन लिया है और उसका मुझे आर्ट डेरिवेटिव निकालना। आर्ट आई डोंट नो, इट इज 10, 13, 14, 100, 1000, व्हाटएवर इज देयर, एंड दिस एक्स रेज टू एन पावर भी एन कुछ भी हो सकता है वहां पे। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ डेरिवेटिव इज एनपीआर, मींस एन हमें यहाँ से एक्स रेज टू एन से मिल जाएगा। पी मतलब जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो ऑर्डर का डेरिवेटिव वो आर होगा। एनपीआर इट इज फॉर्मुलेशन फॉर्मूला, वी नो इज एन फैक्टोरियल अपॉन, एंड एक्स रेज टू ले रहे तो हमारा बिल्कुल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो एंड देन उससे सबट्रैक्ट करो उससे। देन अगेन सेकंड फॉर्मूला एक्स प्लस बी रेज टू एन, क्लियर। सो अगेन ये आर डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट देखो क्या है, बिकॉज इन एवरी डेरिवेटिव द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी बिकम का ए बाहर आने वाला है एवरी टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव को ए, सेकंड डेरिवेटिव को ए स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव को ए क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव को ए रेज टू 4, लाइक दिस। सो आर डेरिवेटिव के लिए ए रेज टू आर, जो कोएफिशिएंट होगा इसका उसकी पावर रेज टू आर, एंड देयर इज NPR again same, and ax plus b raised to n minus 1. हाँ, but keep in mind if this a is minus then it depend on r. R is even or odd, उस हिसाब से minus sign change होगा. Keep in mind. Now some examples here. F of x is 2 into bracket, sorry 2 into x raised to 17 minus x raised to 9. तो हमें पूछा है f raised to 10x means 10 डेरिवेटिव निकालना है इसका. So सबसे सिंपल थिंग, वेरिएबल की पावर से अगर डेरिवेटिव की ऑर्डर ज्यादा होगी तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स रेज टू 9 का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो हमें सब बेसिक पता है. तो 2 एक्स रेज टू 7, ये 2 कोएफिशिएंट है, सो 2 रेज टू 10 एज इट इज एज पर दिस फार्मूला, बिकॉज वो कोएफिशिएंट एवरी टाइम ऐड होता जाएगा. देन 17 p10, क्लियर इट इज, सॉरी वो 2 वैसे रहेगा, 2 रेज टू 10 नहीं आने वाला वहां पे. दिस कीप दिस एग्जांपल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल डायरेक्टली. Here is f of x 2x plus 3, because ये 2 raised to n नहीं होगा, it is 2 only. 17 p10 x raised to 7, derivative of this 9 is 0 because 17 में से 10 गए तो 7 रहने वाला है. Now here NPR it is 2x plus 3, 2x plus 3, because ये 17 अगर 2x plus का 17 का पावर होता तो 2 raised to 10 आता. So keep in mind here take 2x raised to 17. I'm taking 2x raised to 17, then this is correct answer. Now f of x equal 2x plus 3 raised to 10, ये हमारा x plus b का है, so a is 2 हुआ, क्लियर. एंड हमें कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, फोर्थ डेरिवेटिव f raised to 4x, एंड ये हमारा 10 हुआ, so it is f raised to 4x is a raised to r means 2 raised to 4, because r is 4, 10 p4 in bracket 2x plus 3 raised to 10 minus 4 is 6. Clear. This is the second example. Just note down this shortcut and try your own examples also, because my main target is I want to move the MSCET questions. I'm just using or share this shortcut trick with you. This is another shortcut trick. There is sometimes what happen, we know if there is some larger function, means some multiplication in numerator of functions upon some denominator squaring like this, so definitely we people try to ignore to solve such type of differentiation, clear. But if there is this type of example, particular type example जो मैंने शेयर किया यहाँ पे, उस टाइप के अगर एग्जाम्पल हो गए तो डेफिनेटली आप लोग हमारे शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं उसके लिए. कि अब डेफिनेटली यू पीपल, अगर मैंने पूछा आप लोगों से हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, सो आप लोग डेफिनेटली मुझे रिप्लाई दोगे, सर यूजिंग लॉग. लॉग यूज करो, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करो. सो लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, उस हिसाब से यूज करेंगे. उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करेंगे and then find out the answer. But using shortcut tricks, such type of question I'm telling to all of you. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है because भूल गया वहाँ पे. So it is sub y equal to square root of 1 minus x square into 2x minus 3 raised to 3 by 2 upon x square plus 2 raised to 2 by 3. And question is find dy by dx. So answer is first y as it is, बिकॉज y वहां पे आने वाला है. कैसे आएगा, वो लॉग का जब हम ट्रांसफर करते हैं ना एंड में RHS में, वो वहां पे आने वाला है. 1 by y dy by dx का लॉग का जो डेरिवेटिव आता है वो y वहां पे गया. इट इज आवर फंक्शन. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई, जस्ट लुक एट 1 minus x square की पावर क्या है, इट इज 1 by 2, क्योंकि वो रूट में है. रूट में तो वो पावर 1 by 2 एज इट इज.
ये डिवाइड में लेना है। क्यों डिवाइड में लेना है? क्योंकि वो लॉग में आने वाला है। तो लॉग में आएगा तो लॉग का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना वहां पे। सो इट इज 1 डिवाइड में 1 माइनस ए फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आया एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज -2x। कैसे लिया मैंने? जस्ट राइट डाउन योर नोटबुक। इफ देयर इज अ 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आप बताओ? 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज दिस 1/2 1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर इनटू -2x। कैसे? जैसे वहां पे एग्जांपल में आप कब आएगा आपको? जब आप वहां पे सारा सिंप्लीफिकेशन करोगे तब आएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक मैंने क्या बताई? इट इज 1/2 बिकॉज उसकी पावर है जो मल्टीपल में आ गई 1/2। देन 1 अपॉन फंक्शन 1 माइनस एक्स फंक्शन मतलब जो वहां पे स्क्वायर रूट में है एंड उसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x प्लस इन दोनों के न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2x माइनस 3 में मल्टीप्लिकेशन है। सो लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिकम लॉग एडिशन होगी। सो एडिशन में अगेन पावर मल्टीप्लाई सेम लॉजिक पावर मल्टीप्लाई आई 3/2 देन 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर में लिया मैंने क्योंकि वो लॉग के डेरिवेटिव नीचे आने वाला है। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे वो कर्सर और मैं पेन भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लॉकिंग एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 इज 2। क्लियर? ये हो गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब लॉग में आपने बताया लॉग ए माइनस बी मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी ना। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस में आने वाला। सो माइनस इन ब्रैकेट अगेन 2/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 and this derivative of x square plus 2 is 2x. So this way we find out. Second example also same x square minus 1 raised to 4. So again divide is y. Check here. This 4 multiply जैसे वहां पे 1/2 मल्टीप्लाई था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव इज 2x प्लस अगेन यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है 1 मल्टीप्लाई के 1 मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 इज 2। सो न्यूमरेटर हो गया हमारा पूरा माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सारा स्क्वायर रूट में दोनों भी मींस x माइनस 3 एंड 4x माइनस 1 इन स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट मीन रेस्ट टू 1/2 तो 1/2 मैंने कॉमन बाहर ले लिया पावर मल्टीप्लाई ले ली रिमेनिंग एज 1 अपॉन x माइनस 3 पर दो का मल्टीप्लिकेशन है। सो प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 इज 1। सो वहां पे कोई नहीं आया। सो 4x 1 अपॉन 4x माइनस 1 एंड डेरिवेटिव इज 4। So this way you find out the shortcut trick where you to cross check your answers in your state board examination also and this also. There is some more examples. I'm not going to this because my main target is MSCT. Now come to the main topics. It is the application of derivatives. So first application is increasing and decreasing functions. Here, first application is increasing and decreasing function. So all of you know how to check the given function is increasing or decreasing. Here I am just giving some shortcut. I request all of you please note down. It's very helpful because 101% 1 2 mark question in MSCT on this increasing and decreasing function in your MSCT 2020. So therefore, when for checking decreasing and increasing function, we find out the derivative of function with respect to variables. सपोज वेरिएबल x होगा तो x, t होगा तो t, r होगा तो r, whatever is there. So f dash of x निकालो. If f dash of x उस इंटरवल के लिए चेक करना है ना, मैं वो बोलेंगे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल सपोज -3 to 3 -a to a या -∞ to +∞ दैट इज r उसमें चेक करना है। तो उसका कौन सा पॉइंट हम पुट करके देखेंगे x की वैल्यू। सपोज उस पॉइंट के लिए f dash of x greater than 0 आया सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव पॉजिटिव function increasing for that point for that interval. The point belongs to that interval. Point जिस interval में आ रहा है उस interval में वो function increasing है if derivative becomes positive. Now if f dash is less than 0 means उस interval के उस point के लिए अगर f dash less than 0 आया तो उसमें वो definitely decreasing है and f dash of x अगर 0 आया so this constant function means what? It is neither increasing nor decreasing like this. There is some strictly increasing, strictly decreasing, decreasing, increasing हो greater than equal to के लिए उस इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसका ज्यादा कुछ इंक्रीजिंग या इफेक्ट नहीं होगा बट तभी भी अगर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आया तो उस इंटरवल में अगर वो पॉइंट आ रहा है तो इट इज डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आया तो इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो इंक्रीजिंग। बट कीप इन माइंड अगर वहां पे वो पॉइंट उस इंटरवल में होगा तो अदरवाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। Now,
सम एग्जांपल ऑफ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो हम लोग देखेंगे वहां पे आगे है एग्जांपल्स. सो हाउ टू वर्किंग रूल टू फाइंड फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. फर्स्ट फाइंड आउट एफ डैश. उस एफ डैश को फैक्टराइज करो या फिर वैसे रखो, चॉइस इज यूर. जैसे आप लोग ट्रिक यूज कर रहे हो, आपको लगा नहीं वो वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्टली एफ डैश में वैल्यू निकाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए वो फैक्टर कहाँ पे वो फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए वो वैल्यूज फाइंड आउट करने, तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंड देन चेक द इंटरवल्स. अगर सपोज ये एग्जांपल लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6x 3x क्यूब 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30. चेक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. x बिलोंग्स टू r. अब x बिलोंग्स टू r बोला है. r मीन्स व्हाट? r इज नथिंग बट द माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ निकाला. Clear. Keep as it is, no problem. But what happen in this? It is f dash क्या होगा? 12x square minus 12x minus 72. तो 12 कॉमन निकाला मैंने, एवरीवेयर से निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, इस क्वेश्चन में निकलेगा, गारंटी नहीं है. इट इज x square minus x minus 6. उसका फैक्टराइज किया मैंने, x minus 3 x plus 2. कैसे फैक्टराइज किया? We know multiplication minus 6 and addition और subtraction. Addition is minus 1, so it is minus 3 plus 2. क्या minus 2 to 3 में क्या हो रहा है? एनी वैल्यूज माइनस 2 to 3 कौन सी वैल्यू पुट करो, ये निगेटिव आने वाला है, पता है हमें. तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? सब स्लोप लाइन इन 2 पॉइंट्स. देन नेक्स्ट और देयर इज अ दिस टाइप ऑफ कर्व्स ax plus by plus c equal to 0. Okay, write down the formulas. Can I go back? Or I will share this PDF to all of you, don't worry, in our WhatsApp group. Clear guys, I will share this PDF to all of you on WhatsApp. So we'll share this PDF at the end of the session to everyone. Because I know that each and every student have some network problems, so there is some limited data. So if session extended, then definitely I know that fast से तो भी फायदा नहीं है, but PDF शेयर करने के बाद फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर एग्जांपल में फिर से हम लोग शेयर करेंगे उसे. Yes sir. Now, Yes. Here is again ax plus by plus c equal to 0. इस type का curve, it is line or curve, whatever is there. So in this case, what is a slope? Slope क्या होता है such type of equation में? The coefficient minus of coefficient of x upon coefficient of y. So minus a by b. Keep in mind, also note down. And also don't forget, slope is tan theta. So this theta is tan inverse, means slope is tan theta is also a slope. Now, if two lines are perpendicular, clear? Perpendicular means what? All of you know. एक लाइन को दूसरी लाइन नॉर्मल होगी फिर. So slope of tangent and slope of normal equal to -1. क्योंकि tangent and normal, उस tangent को जो normal है वो perpendicular हो गए, दोनों का slope equal to -1. This is a very very important formula, and definitely we want to one question on your MSCT again 101%. बिकॉज अगर आपको स्लोप टैंजेंट का स्लोप पता है तो उससे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेंगे या कुछ ना कुछ, या नॉर्मल का स्लोप निकालने के बाद हम उसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखने के लिए बोलेंगे. लाइक दिस क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे उसे वहां पे. सो स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू स्लोप इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. कीप इन माइंड दिस m1 into m2 इक्वल टू -1 बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है. सो m1 इक्वल टू -1 by m2. इसका यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं. या वो लोग क्या करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टीज देंगे, ये लाइन है वहां पे, आइदर ये परपेंडिकुलर है, ये कर्व को ये लाइन इस पर कर्व परपेंडिकुलर, या इसका टैंजेंट उसको परपेंडिकुलर है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. वो भी उस टाइप का भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू के लिए मोस्टली पूछते हो लोग, सीटी के लिए इतना डिफिकल्ट पे जा नहीं रहे हो, बट आ सकता है मे बी. सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालेंगे अगर हमें पॉइंट एंड स्लोप पता हो तो? इफ यू नो द पॉइंट x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप इज m1. सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज y minus y1 इक्वल टू m1 x minus x1. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप एंड पॉइंट पता होगा तो अगेन ये x1 y1 पॉइंट है, m2 स्लोप है नॉर्मल का. So y minus y1 equal to m2 into bracket x minus x1. This way very basic concept, not normal and tangent के equation के लिए definitely 1-2 mark question in MSCT application में. Hope so all of you note down or take a screenshot also, no problem.
Okay, move towards the very interesting again second one. Keep in mind again 1 2 mark question definitely in your MSCET. Application of derivative is maxima and minima. I'm just using 2 methods because ज्यादा मेथड पे गए तो फिर से डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो ये पर्टिकुलर मेथड है, क्वाड्रेटिक के लिए पर्टिकुलर शॉर्टकट निकाला है हमने. एक्चुअल फॉर्मूला क्या है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन. सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्चुअल फॉर्मूला, सॉरी, फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल क्या है? इट इज फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. क्लियर. देन वो डेरिवेटिव को इक्वेट करो 0 से. क्लियर. ओके, देन वी गेट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स. सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. कीप इन माइंड क्या किया हमने, डेरिवेटिव निकाला, इक्वेशन इक्वल टू 0 इक्वेट किया तो इक्वेशन मिला, इक्वेशन के रूट निकाले, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स निकाले. क्लियर. यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग. देन वी फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स. एंड उस सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ओ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से मिली. बराबर, जो एफ डैश 0 से मिली वो एक्स की वैल्यू हमने एक्स आई लिया वहां पे, उसमें पुट करेंगे. वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर डबल डेरिवेटिव दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन 0 आया, दैट इज पॉजिटिव आया, तो गिवन फंक्शन इज मिनिमम. कीप इन माइंड मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसीजर. यस आशुतोष, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स निकालते, मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते, डेरिवेटिव को इक्वेट करते 0 से. इक्वेट किया तो हमें इक्वेशन मिलेगा. आगे क्वेश्चन है एमएससीटी में, जो क्वेश्चन आए वो मैंने सॉल्व किया. आगे इसे 0 में इक्वेट करते तो हमें इक्वेशन मिल रहा है. इक्वेशन मिलेगा तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कौन सा ही वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 जैसे अभी आपने फैक्टराइज किया था. हेलो. यस हाँ सर. सुनील सर, ये यस जो सर. पॉइंट है अभी का जो आप बता रहे हो, तो उसको हाँ. फिर एक्सप्लेन करिएगा. एक यस स्टूडेंट यस 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 आशुतोष का मैंने देखा वहां पे. यस आशुतोष, आई विल रिपीट इट अगेन. see the chat box also while presenting. Okay. यस 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 हम मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हैं. सो व्हाट एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. आप ये जो सेकंड पार्ट है उसे हाइड करो, जो क्वाड्रेटिक का है उसके बारे में सोचो मत अभी. मैं जैसे गिवन जैसे एक्चुअल रूल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. फर्स्ट मतलब दिस वन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. दिस वन इज मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं. सपोज हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, इट इज सपोज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है. तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है हमारी, हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं. ये क्वेश्चन मार्क है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं. वो एफ डैश ऑफ इक्वेट 0 करते हैं. इक्वेट 0 करने के बाद डेफिनेटली पॉलिनोमियल इक्वेट 0 किया तो इक्वेशन, या फंक्शन इक्वल टू 0 किया तो इक्वेशन आ रहा है. तो वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उससे हमें उस वेरिएबल की वैल्यूज मिले. जो एक्स है उसे मैंने एक्स आई माना क्योंकि वैल्यूज मोर देन 1 हो सकती है ना. सो x1 x2 x3 लाइक दिस. सो x मिला हमें. बराबर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव, जो आके डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन मिला है. नाउ हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का. एफ डबल डैश कहाँ से, एफ डैश ऑफ एक्स हमें पता है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. और उस सेकंड डेरिवेटिव में वो एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं. उस एक्स के वैल्यूज के लिए अगर वो एफ डबल डैश ऑफ, लुक एट दिस एक्स आई मीन जो वैल्यूज आए एक्स की, वो वैल्यू हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट किया, तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स उस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, देन द फंक्शन इज मिनिमम. तो उस एक्स के लिए उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी. कौन से फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की. क्लियर. एंड अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो भी है एक्स लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव आया, तो उस x के लिए उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमने शेयर किया. क्लियर. ये हो गया एनी जनरल केस. आई मूव टुवर्ड्स शॉर्टकट पे. शॉर्टकट मतलब क्या, अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक मींस व्हाट, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी. क्लियर. ये जनरल फॉर्म हुआ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ. क्लियर. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ तो शॉर्टली हम लोग मिनिमम मैक्सिमा कैसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए पर्टिकुलर केस है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहा हूं मैं. इट इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन, इट इज ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक फंक्शन. सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी.
ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसमें फोकस करना है ए पे। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो आंख बंद करके आप लिखोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इन्फिनिटी। ये शॉर्टकट ट्रिक है, कीप इन माइंड, सर्च एवरीवेयर। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इन्फिनिटी अगर ए पॉजिटिव है तो, एंड द मिनिमम वैल्यू इज 4ac minus b square upon 2a. Write down, note down this. Again I am saying note down this. It is अगर a पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक में, a is a coefficient of x square. Keep in mind, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, like this, या 2/3 भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. So it is maximum value उस फंक्शन की, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, किसके लिए? मैक्सिमम वैल्यू उसकी हाईएस्ट इंफिनिटी होने वाली है, एंड मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की क्या होगी? 4ac minus b square upon 4a. क्लियर? डिपेंड ऑन हमें एग्जाम में क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम पूछा है. कीप इन माइंड, ऐसे होगा क्वाड्रेटिक तो वो मिनिमम पूछेंगे, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है इन्फिनिटी है. और अगर a नेगेटिव होगा, इस इक्वेशन सपोज माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लाइक दिस. सो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक है तो a नेगेटिव हुआ, a नेगेटिव तो कीप इन माइंड मिनिमम वैल्यू क्या हुई? माइनस इन्फिनिटी. मिनिमम वैल्यू क्या हुई? माइनस इन्फिनिटी. एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? -4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a. कीप इन माइंड. तो अभी अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक में नेगेटिव होगा तो आपको मैक्सिमम की वैल्यू पूछेंगे, मिनिमम उनको पता है, इट इज माइनस इन्फिनिटी. फॉरगेट दिस थिंग. क्लियर? सो नोट डाउन दिस टू फॉर्मूलाज फॉर ओनली क्वाड्रेटिक. ऐसे अगर एमएससीटी में आया तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट वेस्ट योर टाइम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए. डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यूज हियर, ए बी सी. अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम ही पूछेंगे, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम. माय गेसिंग, आई एम सेइंग माय गेसिंग, 100% नहीं बोल, मैक्सिमम टाइम इट लाइक क्वेश्चन दिस. एंड अगर ये पूछा तो वेरी गुड थिंग, अगर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो सिंपल ही है. क्लियर? एंड द लास्ट मोर वन एप्लीकेशन पे मैं मूव होने वाला हूं उसका. वो एप्लीकेशन है हमारा, जस्ट अ बिट, हाँ, लास्ट एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन का. मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा. क्यों? क्योंकि हमें पता है अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं वो लोग. ये फॉर्मूला है, हम जो एफ ऑफ एक्स है उसको सपोज 1.1, 1.2 या 9.9 लाइक दिस ऐसे देंगे वो लोग वहां पे. वो अप्रोक्सीमेशन निकालना है उस वैल्यू के लिए हमें, तो सिर्फ उस 1 को हम a प्लस फॉर्म में लिखेंगे और इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे. मैंने वन एग्जांपल दिया है, वो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन एट द एंड. सो f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a. कीप इन माइंड, इसमें अप्रोक्सीमेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? चूज करेक्ट a एंड करेक्ट h. h एंड a करेक्ट चूज करो, अप्रोक्सीमेशन का आंसर विद इन 1 मिनट आ जाता है. कीप इन माइंड, करेक्ट a एंड करेक्ट h चूज करो, एंड दिस फॉर्मूला इफ यू नो, approximation का आंसर within 1 minute आ जाएगा. Don't waste your time for this also again. So let's start or move towards our questions directly. The MSCT questions appear in I think 18, 19 and 17 or 16 or some JEE question also I'm including here. So let's move towards. So I request before moving towards the questions, I request all of you take your notebook and take your pen with you, because we discuss means what I'm asking the question, you guess your answers, then I will explain it. Just consider हम लोग अभी एमएससीटी का पेपर दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? लास्ट क्वेश्चन पेपर में आए हो तो मे भी हो सकता है इसी में आएगा, जस्ट वैल्यू चेंज होगी. कॉस की जगह पे साइन होगा, साइन की जगह पे टैन होगा, व्हाटएवर इज देयर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक योर पेन एंड पेंसिल्स और नोटबुक or whatever the with you. So move towards the next. This is first question, little bit difficult, means little bit अलग वे का जो मैंने कवर नहीं किया है. हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. क्लियर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो क्वेश्चन इज, ये सीटी 18 में था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. सो अगर इस लाइन को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, dy by dx means partial derivative of f with respect to x and partial derivative of f with respect to y निकालो, उसको इक्वेट. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया टू फाइंड fx means dabba f by dabba x equal to 0. What do you mean by dabba? Dabba is nothing but the partial derivative. Partial means what?
अभी अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में इम्प्लिसिट फंक्शन पे एक्सप्लेन किया था, पार्शियल मींस व्हाट, एक्चुअल डेरिवेटिव बट अदर वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हम लोग डाबा एफ बाय डाबा एक्स ले रहे हैं, नोट डाउन दिस थिंग और राइट डाउन दिस थिंग, डाबा एफ बाय डाबा एक्स ले रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एफ को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट एक्स वाई जेड जो भी होगी सबको कांस्टेंट रखना है, सिर्फ एक्स इज द वेरिएबल, उसे कंसीडर करके डेरिवेटिव लेना। जैसे डाबा एफ बाय डाबा वाई का एग्जांपल ले लो, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओनली, बाकी जो भी होगा मैं आप सब इनवर्स सब कांस्टेंट है, फॉरगेट दिस, ओनली वाई इज द वेरिएबल व्हेन वी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियली मतलब हाफ हाफ कांस्टेंट, आपको मीनिंग भी पता है पार्शियल का। सो दिस पॉइंट्स जो हम इक्वल टू जीरो करेंगे और जो पॉइंट आएंगे वो हमें इंटरसेक्शन देंगे उस लाइन पे। सो एफ ऑफ एक्स मींस डाबा एफ बाय डाबा एक्स, कीप इन माइंड डाबा एफ बाय डाबा एक्स इज 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 0, x का 1, 3y का 0, 2 का 0, सो इट इज 2x plus 1 equal to 0, so x equal to 1/2, इट इज सिंपल थिंग है बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ आपको गेसिंग नहीं बोला उसमें। fy डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर का 0 इट इज -2y, x का 0, 3y का 3, 2 का 0, सो इट इज -2y plus 3, so y equal to 3/2। सो कौन सा पॉलिनोमियल x y की -1/2 3/2, सो हमारा आंसर कौन सा होगा -1/2 3/2। Why I'm going fast? Because it's a very simple question. Now move towards again these questions. Again, I request all of you. It's very very important. 101% this type of questions in your MSCT paper. Actual में ये क्वेश्चन किसका है? आपके पैरामेट्रिक फंक्शन का है, बट वो एक्चुअली समझ में आता नहीं क्योंकि वो डेफिनेटली कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वो वहां पे मेंशन नहीं करेंगे दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन, फाइंड डेरिवेटिव, बट हमें गेसिंग करना है पैरामेट्रिक का क्यों। लुक एट हियर, x is a function of what? X is a function of theta because e raised to theta sin theta minus cos theta, clear? Y is a function of what? It is again theta, so x and y theta के function है, but हमें क्या find out करने के लिए बोला? Then find dy by dx means derivative of y with respect to x। ये क्वेश्चन अलग में से ऐसे ही पूछ सकते हैं, कैसे? Differentiate e raised to theta sin theta plus cos theta with respect to e raised to theta in bracket sin theta minus cos theta। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। Differentiate y, y means what? e raised to theta in bracket sin theta plus cos theta with respect to e raised to theta sin theta minus cos theta। This type of question also your parametric function, keep in mind। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया एक्स एंड वाई, तो इट इज वेरी गुड थिंग, डोंट वरी, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें, बट किसके लिए? dy by dx थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। थीटा किसके लिए निकालना है? पाई बाय, यहाँ पे मैंने गलती से आंसर ठीक किया है, बट देखो कैसे करेंगे dy by dx। एक्चुअल में तो y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, या आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट डाउन y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो क्या आप लोग? वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक नॉट पॉसिबल, ट्रिग्नोमेट्री में खेलते बैठना पड़ेगा हमें। So better way using our implicit function derivative again, it is dy by means differentiate y with respect to theta and divide differentiate x with respect to, ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव में? होप सो, चेक इट, इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्टिंग में, आई थिंक सो। सो dy by d theta upon dx by d theta, so partial derivative, sorry, not a derivative of y with respect to theta, y with respect to theta it is a product of two functions, so u भी रूल यूज होगा। so मैंने फर्स्ट क्या किया, sin theta plus cos theta as it is derivative of e raised to theta is e raised to theta, y का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं न्यूमरेटर में, देखो ठीक से y क्या है, यहाँ भी आप कंफ्यूजन कर जल्दबाजी में आप क्या करोगे, x को पे डिफरेंट करोगे, बाद डिनोमिनेटर में y लोगे, ये भी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि हम लोग उस वक्त एग्जाम में हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जितने जल्दी हो जाए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अगर हमें आंसर आ रहा है तो हम जल्दबाजी में डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक वहां पे कर देते हैं। दिस मेनी टाइम्स हैपन विथ मी इन आवर सेट एंड नेट एग्जामिनेशंस, कीप इन माइंड। जो मुझे पता है, जो मुझे आ रहा है, जो मुझे 100% आने वाला है, उसमें मैं जल्दबाजी में डेफिनेटली मिस्टेक करती है। इट्स माय प्रॉब्लम आई थिंक, बट आई मेरे हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से इट्स प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरीवन, बिकॉज अगर क्वेश्चन देखा आ रहा है तो हम इतना जल्दी करते हैं उसे कि बस हो जाएगा। सो माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, साइडलाइन पे मतलब नहीं, अगर 100% पेपर कवर हुआ तो चलेगा, 80% 90% कवर करो, बट उस आराम से जाओगे।
तो जो मिस्टेक होने 100% कवर करके फायदा क्या होगा? अगर 100% कवर कर रहे हैं हम 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं उसमें, तो इट इज डेफिनेटली लॉस। तो 90% अगर करेक्ट सॉल्व किया तो वो डेफिनेटली कुछ फायदा ही होगा। सो गो स्लोली यार, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी डेट पोस्टपोन हुए एमएससीटी के, तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करो। सो मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। मैंने y को डिफरेंशिएट किया इन न्यूमरेटर। फर्स्ट टाइम ये sin थीटा cos थीटा as it is, derivative of e raised to theta is e raised to theta with respect to theta, plus second time e raised to theta as it is, derivative of sin is cos and cos is minus sin. Clear numerator. In denominator we differentiate x with respect to theta. So again मैंने क्या किया, sin theta minus cos theta वैसे ही रखा, derivative of e raised to theta is e raised to theta as it is, plus e raised to theta as it is, derivative of sin is cos and cos is minus sin, so this minus minus become plus guys. Clear? This minus minus become plus. So what happened? न्यूमरेटर में से भी e raised to theta कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से भी e raised to theta कॉमन आ रहा है. So take common and cancel it. So e raised to theta वहां से बूम हो गया, मतलब कैंसिल हो गया. क्लियर? नाउ हियर इज just it is addition of functions, sin theta plus cos theta minus sin theta, sin theta minus cos theta in denominator plus cos theta plus sin theta. So in numerator sin minus sin gets cancelled, in denominator minus cos plus cos gets cancelled. What is remaining? 2 cos theta upon 2 sin theta. Again 2 cancel guys. So therefore cos theta upon sin is cot theta. So this is the value of dy by dx in the form of theta. It is cot theta. Now dy by dx किसके लिए फाइंड आउट करना है हमें? थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. So therefore dy by dx theta equal to pi by cot pi by 4. What is the value of cot pi by 4 guys? Cot pi by 4 is, what is the value of cot pi by 4? Tell me fast. What is the value of cot pi by 4? It is 1. Clear? So therefore answer is 1. So our option A is correct. Got it? Now move towards the next. Now हाँ इस पे आने वाले थे. Now this is the question to all of you. Just write down the questions. Question I will read here. जानबूझ के मैंने आंसर ऐड किया है. Keep in mind because question on increasing function. Keep in mind. Just take your pen and notebook and try to solve it. Tell me your guessing. Tell me your guessing on chat box first. If function is if f of x equal to x upon x square plus 1. Function क्या है? x upon x square plus 1 is increasing. क्या दिया हुआ है? Function increasing दिया हुआ है. Then the value of x lies between. मतलब उन्होंने उल्टा दिया. अभी उल्टा दिया मतलब क्या दिया? हमें फंक्शन इंक्रीजिंग दिया है तो वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है वो वैल्यूज निकालनी है हमें वहां पे. क्लियर इट? मतलब वो इंटरवल निकालना है. कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली समटाइम्स वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे, समटाइम उल्टा पूछेंगे. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. पूछे कि वो आंसर क्या करेंगे? इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग मतलब व्हाट? वहां उस इंटरवल में उस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है. डेरिवेटिव की वैल्यू मीन्स हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. फाइंड आउट डेरिवेटिव क्विक. जल्दी डेरिवेटिव निकालो. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. मैंने वहां पे फाइंड आउट भी करके दिया है जो स्क्रीन में दिख रहा है. फाइंड आउट करो. चलो क्या होगा? यूजिंग यूवी रूल. जिन लोगों को यूवी रूल पता नहीं डिफरेंशिएशन का, मैं बता रहा हूं. u v as it is derivative of u minus u as it square, जैसे मैंने बोला. So look at here. मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया. This v x square plus 1 as it is, derivative of x is 1 with respect to x minus it is x as it is, derivative of x square plus 1 is 2x. 1 का derivative 0. So simplify upon x square plus 1 bracket square as it is. Simplify करने के बाद क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे it is x square plus 1. So it is x square plus 1. यहाँ पे 2x square. x square and minus 2x square का ओनली एक्स स्क्वायर रहेगा. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. समझ में कैसे? मैंने शॉर्ट में लिखा है वहां पे. ये 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना रहेगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर ओनली. सो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. क्लियर? नाउ हियर इज दिस इज आवर यस सर. Saili, one of the participant has raised. Ask the question please. Yeah, I will cover at the end. Yeah, I will cover this question at the end. Yes, sir.
Okay, Sally, definitely note down your questions and I'll ask at the end. Don't worry. I will cover it. Clear. So मैंने बोला है आंसर अगर आपके आ रहे हैं गाइस तो चैट बॉक्स में उसे रेज करो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जानबूझ के आंसर हाइड किया है. इंक्रीजिंग बोला है तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला. So this f dash of x is greater than 0. So definitely 1 minus x square upon x square plus 1 bracket square greater than 1. Sorry, greater than 0 है यहाँ पे. It's my printing mistake or writing mistake. यहाँ पे 0 है. It is a 0. 1 minus x square upon x square plus 1 brackets for greater than 0. Greater than 0 means definitely numerator पॉजिटिव है. डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा. कीप इन माइंड, अगर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है. कीप इन माइंड, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है. सो फॉरगेट डिनोमिनेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. So that means 1 minus x square is greater than 0. Clear? 1 minus x square greater than 0. So x square is less than 1. If x square is less than 1, so x is less than 1. Clear? Because square root में 1 का square root 1 ही होता है. तो x is less than 1. Once x is less than 1, so it is, we know x belongs to the interval minus 1 to 1. Open interval. So our answer, this function increasing in the interval or x lies in the interval minus 1 to 1. Clear? Now the second question. Come towards our second very important topic जो मैंने बोला था. It is minima and maxima. Clear? It is minima and maxima. So guys, चलो फिर से हमारे इस पे जाओ, जो भी हमारा लॉजिक था उस पे जाओ. मैक्सिमम के लिए क्या बोला था हमने. अभी देखो फंक्शन क्या है, फिर से आपको आंसर शेयर करना है गाइस, या आप ट्राई करो सॉल्व करने के. अगर हमारे मेथड से गए तो डेफिनेटली विद इन 1 मिनट यू पीपल गॉट द आंसर. वी प्रैक्टिस इट. सच टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाले, सिर्फ मतलब फंक्शन चेंज होने वाला है गाइस, डोंट वरी. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस करना है गाइस. हमें यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए नहीं बोला है. क्या बोला है, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू बताओ उसकी क्या है. आया समझ में? उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है ये पूछा है डायरेक्टली उन्होंने. तो हम लोग x निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे एफ डबल डैश. यहाँ पे एफ डबल डैश निकालने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू फाइंड आउट द एफ डबल डैश बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है मिनिमम डायरेक्टली. तो फॉरगेट इट, हम क्यों चेक करें उसे, कोई जरूरत नहीं उसको. सो देयरफॉर देयर इज अ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स. किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. तो मैंने जानबूझ के आंसर टिक नहीं किया यहाँ पे पहले. तो आई वांट आंसर फ्रॉम यू इन चैट बॉक्स. अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, गलत हो रहा है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई पीटने वाले नहीं है किसी को. सो बट सीखो इससे. सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स लॉग एक्स. क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू. क्लियर? रूल क्या है, डेरिवेटिव तो चाहिए पहले. हम किसके लिए निकालते हैं मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स की कुछ तो वैल्यू चाहिए ना भैया. हमें एक्स की कुछ तो वैल्यू चाहिए. वो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट द डेरिवेटिव. Find out the derivative. Yes, I think. Okay, Vaishnavi share the answer A. Okay, check which one is the answer. A. उसका कहना है आंसर A. Other one, very good Vaishnavi. Now derivative f of x is x log x. तो मैंने क्या किया, f dash of x निकाला. f dash of x is again UV rule. Log x as it is, derivative of x is 1 plus x है डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x. सो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 x कैंसिल. सो मुझे मिला log x plus 1. f dash of x क्या हुआ हमारा, log x plus 1 हुआ. कीप इन माइंड. नाउ f dash of x 0. क्यों 0 पुट किया, अभी आप पूछोगे. क्योंकि भाई हमें वो x निकालना है ना जिसके लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मैंने क्या बोला, मैक्सिमम मैक्सिमम चेक नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू निकालनी. तो वैल्यू निकालने के लिए वो वेरिएबल की वैल्यू तो चाहिए हमारे पास. सो दैट्स व्हाई this f dash of x equal to 0. So log x plus 1 equal to 0. So log x equal to minus 1. Clear? log x equal to minus 1. अब आया पॉइंट, log कैंसिल करना है भाई. कैसे करेंगे, log कैंसिलेशन के लिए एक ही नेचुरल लॉगरिथम है, बेस टू बेस ही. सो कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल में log and exponential gets cancelled. So it is e raised to minus 1. e raised to minus 1 is 1 by e. कीप इन माइंड, जल्दबाजी में फिर से 1 by e आंसर टिक मत करो, क्योंकि ये x की वैल्यू हुई. हमें पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन.
तो इस x के वैल्यू के लिए हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर f ऑफ x इक्वल टू 1/e. सो ये 1/e किसने पुट किया हमने इस x log x में. सो x इज 1/e log 1/e. अगेन 1/e एज इट इज. ये log 1 माइनस log e कैसे log a by b का फॉर्मूला यूज किया मैंने. क्लियर. और हम लोग यूज करेंगे log 1 is 0. log e की वैल्यू is 1 because e and logarithm gets cancel each other guys. So therefore 1/e into bracket 1 minus 0 minus 1. So final answer is minus 1/e. So Vaishnav is correct. Very good. It is minus 1/e. Clear. So our option is A. Clear guys. So this type of question CT 18 देखो जो मैंने लिए वो क्वेश्चन पूछे गए और इट्स वेरी वेरी सिंपल. विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हो भाई. जस्ट हमारा माइंड शार्प रखना है. उसे आप कूल रखो. जितना जल्दबाजी करोगे मिस्टेक होगी. मेरे हिसाब से मेरी स्टूडेंट एक्स की वैल्यू निकाली 1/e टिक करके हम निकल जाते हैं क्योंकि उतनी जल्दबाजी वहां पे होती है. सो कीप इन माइंड, बी केयरफुल. नाउ द नेक्स्ट अगेन मैक्सिमम मिनिमा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट टेल मी द आंसर नाउ इन चैट बॉक्स. अभी क्या पूछा है उन्होंने. मैक्सिमम पूछा है. कीप इन माइंड, रीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन log x अपॉन x. अगेन फ्रैक्शन दिया मतलब u अपॉन v रूल यूज ही करना पड़ेगा यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें. बट नाउ पीपल टेल मी द आंसर. चलो आपके आंसर शेयर करो विद इन 1 मिनट 2 मिनट या आई विल सॉल्व. आप भी सॉल्व करो और आंसर शेयर करो जल्दी से. जिनको नहीं आ रहे भाई लुक एट हाउ टू सॉल्व. कैसे सॉल्व करना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज log x f of x equal log x upon x where x is not equal to 0 and x is not equal to 1 is A option है e, B option है 1/e, C option है e square, D option है 1/e square. So now again फंक्शन f of x. अगेन मैंने बोला है हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक नहीं करना है बट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना. तो उसके लिए वो x की वैल्यू तो चाहिए. बराबर है भाई. x की वैल्यू तो चाहिए. सो f dash of x निकाला. अगेन u अपॉन v रूल. x as it is log x का 1/x minus log root of x is 1 upon x square. So 1 minus log x upon x square आया. कैसे आया, क्यों आया, ये सिंप्लीफाई. x gets cancel 1 log x and upon x square. uv रूल यूज किया भाई वहां पे मैंने. नाउ अगेन फॉर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू तो चाहिए ना. उस x के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसका पॉइंट तो निकालना पड़ेगा पहले हमें. तो f dash of x equal to 0 पुट करो. 0 पुट करने के बाद क्या हो रहा है. इट इज 1 minus log x upon x square equal to 0 because this is the value of our f dash of x. So equal to 0 means denominator become 0. तो कोई ऑप्शन नहीं है. So 1 minus log x equal to 0. Keep in mind यहाँ पे 0 है. ये वो 0 लिखा है बट ये दिख रहा है वहाँ पे 1 minus log x equal to 0. ये 0 है यहाँ पे. Keep in mind again I am saying. So log x equal to 1. It is my printing mistake guys. 1 minus log x equal to 0 है. So log x equal to 1. log x equal to 1. Again वही same question भाई. log cancel करना है क्या करेंगे. exponential use करो. exponential log gets cancel so it is x and here is e raised to 1 means e. ये किसकी वैल्यू हुई. ये हुई वैल्यू ऑफ x. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालिए ना. मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे जस्ट पुटिंग x इक्वल टू e इन दिस log e upon e. ऐसे होगा वो क्या होगा log e upon e. चेक इट हियर. मैक्सिमम वैल्यू के लिए log e upon e. सो इट इज log e is 1 है ना. एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम गेट्स कैंसल and upon e so 1/e. So therefore it is answer is 1/e. So correct answer is B. Okay, got it. Am I correct? So move towards the next question. Again जो भी क्वेश्चन मैंने अभी स्क्रीन पे लिया है वहां पे गाइज, जो भी क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिया ये क्वेश्चन CAT प्लस JEE. CAT प्लस JEE. JEE में सिर्फ क्या हुआ था ये 1/1 plus x⁵ था. बाकी कोई चेंज नहीं था. क्लियर. JEE प्लस CAT दोनों में आके गए. और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. थोड़ा सा हमें क्या करना है देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. If g of x is a inverse function of f of x, that is g is a inverse function of f, and f dash of x is equal to 1/1 plus x⁴. F dash of x is equal to 1/1 plus x⁴. Then g dash is, what is the value of g dash? ऑप्शन दिए A, B, C, D. इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसका. क्लियर. अगेन आई एम जस्ट गिविंग द हिंट. अगर आप लोग सॉल्व करो तो वेरी गुड थिंग. बट हिंट इज
फर्स्ट सेंटेंस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, g of x is the inverse function of f of x means what? g is equal to f inverse. Clear? That is g of x is equal to f inverse x. f dash हुआ है तो f inverse x. Clear? उसे मैंने क्या किया, इस साइड में पेस्ट किया, f inverse goes to this side. This is g of x equal to f inverse, guys. Keep in mind. मैंने क्या किया, उसे भेज दिया LHS में, तो इनवर्स का क्या हुआ f, या सिंपली f से मैंने क्या किया गाइस, थ्रू आउट फंक्शन f of g of x, f inverse and f gets cancelled, so only x is remaining. Understand this step? ये इनवर्स है, f इनवर्स x है, तो इनवर्स मैंने इधर भेज दिया. अदरवाइज आपके लैंग्वेज में f से f ऑफ फंक्शन लिया तो f of g of x इक्वल टू f इनवर्स एंड f गेट्स कैंसल, सो इट इज x ओनली. क्लियर दिस स्टेप? अगर ये स्टेप क्लियर है तो हमारा आंसर गुड, स्टेप क्लियर है तो हमारा आंसर मिल गया, नो डाउट. ये क्या हुआ अभी फंक्शन, f ऑफ इन ब्रैकेट g of x इक्वल टू x. सिंपली डिफरेंशिएट करो. क्यों? क्योंकि हमें g डैश ऑफ x की वैल्यू चाहिए. क्लियर? सिंपली डिफरेंशिएट. हाउ टू डिफरेंशिएट? आई गेट दिस वेरी बेसिक चेन रूल कंप्लीटली यूज करना है. चेन रूल मींस व्हाट? ये g ऑफ x f के अंदर है, मतलब ये फंक्शन के अंदर है, तो पहले डेरिवेटिव f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश g of x as it is by chain rule, and the derivative of g of x is g dash of. जैसे हम लोग लेते हैं cos 2x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम लोग, cos 2x, पहले cos का इट इज माइनस साइन 2x एंड देन 2 का 2. वैसे यहाँ पे पहले f का f डैश g of x as it is, and derivative of g of x is g dash of x, and derivative of x with respect to x is 1. Clear this? derivative कैसे आया? What I'm doing, g dash क्या वो 1 upon f dash of g of x. Now I request guys, this f dash उसमें फंक्शन है g of x, और ये f dash उसमें फंक्शन है x, सो x के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, होंगे g of x. सो ये होगा 1 upon 1 plus g of x raised to 4. कीप इन माइंड ये 1 upon 1 है, क्योंकि f dash में वो 1 upon 1 में है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से. आप डायरेक्टली 1 plus g of x raised to 4 पुट कर देते हो, तो यहाँ पे 1 upon 1 plus g of x raised to 4, and reciprocal लेके हमें पता है it is 1 plus g of x raised to 4. So answer A is correct again. This question for JEE also and CET also, guys. Now move towards our again interesting functions, interesting examples. Look at this. This again belongs to what? It is belongs to your parametric function, guys. Read the question. Derivative of tan inverse x upon square root of 1 minus x square with respect to sin inverse 3x minus 4x cube. याद आया मैंने क्या बोला, वो किससे बोला, मतलब रिमाइंड हो रहा है, जैसे सेशन के स्टार्टिंग में हमने वो cos e raised to sin theta क्वेश्चन लिया था, वैसे एक्सप्लेन किया था मैंने. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स. घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग वैसे डेरिवेटिव, और हम लोग, आप लोग बोले तो हम लोग वैसे डेरिवेटिव का नाम लिया तो टेंशन आ जाता है. ये तो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, जस्ट फॉर योर कंफ्यूजन, आपको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे पूछते हैं. सो बेटर वे, सिंपल सॉल्यूशन इज जस्ट कॉल दिस फर्स्ट फंक्शन एज u एंड सेकंड फंक्शन एज v. कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने u लिया tan इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड v लिया sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. नाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आ रहा है. नाउ हियर tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन पता है हमें. जैसे ही वहां पे 1 माइनस स्क्वायर में आएगा तो हम साइन या कॉस के बारे में सोचेंगे, 1 प्लस स्क्वायर में आएगा हम tan या कॉट के बारे में सोचेंगे. नोट डाउन अगेन दिस स्टेप और दिस थिंकिंग. जैसे ही कहीं पे 1 माइनस स्क्वायर में आएगा साइन या कॉस के बारे में सोचना है सब्स्टिट्यूशन के लिए, और जैसे ही वहां पे कॉट 1 प्लस स्क्वायर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर में साइन कॉस हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आया तो tan एंड कॉट के बारे में सोचना है. क्लियर? वी डेफिनेटली क्वेश्चन. एंड उससे भी ज्यादा अगर यू से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वी में आके देखो 3x minus 4x cube. Guys, tell me the formula for what? Sin 3a. Sin 3a is, sin 3 theta is
3 sin theta minus 4 sin cube theta. हो रहा है कुछ रिमाइंड? सो पुट साइन, सो साइन पुट करने के, एक से कोट साइन पुट किया, सो साइन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इन यू, देखो tan इनवर्स sin theta upon square root of 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta means cos square theta, guys. Yes or no? 1 minus sin square theta is cos square. So square root of cos square is cos. So sin upon cos is tan. डायरेक्ट लिखा मैंने, क्योंकि ज्यादा लेंदी क्यों जाए वहां पे समझ. सो इसकी वैल्यू क्या हुई, tan हुआ. यहाँ पे आ जाओ, tan inverse and tan gets cancelled. So theta, u क्या हुआ, theta only. And V may, it is standard formula of sin theta. So sin and sin inverse gets cancelled. So V हुआ 3 theta. Clear? So now here U in the form of theta and V in the form of theta मिला हमें. But हमें डेरिवेटिव क्या निकालना है? U with respect to V, that is tan का with respect to sin inverse. So dabba U by dabba V, that is part derivative of tan inverse x upon square root of 1 minus x square with respect to sin inverse 3x minus 4x cube. उसके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. सो डाबा u by डाबा v equal to डाबा u by डाबा theta upon डाबा u by parametric function, that is implicit function also. So it is डाबा u by डाबा theta is 1 and डाबा v by डाबा theta is 3. So it is 1 by 3. So our option is 1 by 3 is correct. Such type of questions keep in mind JEE also and CET also. Clear? Guys, this is second question. As it is same वैसा ही है, कोई चीज नहीं है. लैंग्वेज ऑल्सो सेम, सिर्फ थीटा दिया है एट द एंड में. मेरे हिसाब से हमने सॉल्व भी किया है उसे. सो वो भी अलग था, ये अलग है ओनली. ये लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 अगेन. कीप इन माइंड, यू ट्राई योर ओन, राइट डाउन द क्वेश्चन. आंसर है उसका 1. क्लियर? मूव टुवर्ड्स, बिकॉज आई नो दैट टाइम हम लोग ज्यादा अवेयर हो रहा है क्योंकि हमें और टॉपिक आगे देखने हैं वहां पे. लुक एट दिस, अगेन पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है भाई. वही x दिया है, y दिया है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है. क्लियर? x दिया एंड y दिया है इन द फॉर्म ऑफ t. x इज a into bracket t minus 1 by t, y is a in bracket t plus 1 by t. कीप इन माइंड, मैं आपको एक हिंट बता रहा हूं. ये 1 माइनस t माइनस या 1 माइनस या 1 प्लस या t प्लस फंक्शन, अगर वो सिर्फ माइनस साइन का चेंज होगा ना बीच में, जैसे यहाँ पे t माइनस 1 by t and t plus 1 by t. And most important thing, a, अगर ये कैंसल, मतलब वो ये सेम है. जैसे यहाँ पे भी x में कोएफिशिएंट a, y में भी कोएफिशिएंट कॉमन a, और ये 1 माइनस या t माइनस या t प्लस या t माइनस फॉर्म में अगर ऐसे सेम आ रहा है तो डेफिनेटली स्क्वेयरिंग एंड एडिंग के बारे में सोचो. उसके क्या बोला मैंने? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग के बारे में सोचो भाई, तो हमें इजीली आंसर इन दी फॉर्म ऑफ एक्स वाई मिलेगा. आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे प्रीवियस केस से कि नहीं हम डाबा y बाय डाबा x कैसे निकालेंगे? डाबा y बाय डाबा t अपॉन डाबा x बाय डाबा t. नो प्रॉब्लम, निकाल सकते हो, आंसर वही आने वाला है करेक्टली. क्लियर? बट गाइज हमने क्या किया यहाँ पे, देखो ये सेम था, वो t माइनस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी, यानी a सेम था, इसलिए मैंने क्या किया प्लस माइनस साइन था, तो मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाला. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, t प्लस 1 बाई टी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस t माइनस 1 बाई टी ब्रैकेट स्क्वायर. इसे एक्सपांड करो एंड सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू मिलने वाली है 4. किसको? इस ब्रैकेट को. इसकी वैल्यू क्या मिलती है 4. सो ब्रैकेट की वैल्यू 4 हुई तो 4a स्क्वायर. ट्राई करो, सोल्व करके देखो भाई, आने वाला है. क्लियर? So now differentiate, it is in the form x and y, differentiate with respect to x. So y square का डेरिवेटिव 2y dy by dx minus x square का 2x equal to 4a constant है, square 0, so derivative 0. So therefore 2 to x cancel, dy by dx is x by y. So our answer is x by y. Simple, within 2 minute आंसर आ जाएगा, जो हमें लिमिटेड है क्वेश्चन वहां पे 1 या 2 मिनट में. Now this is the जो मैंने बोला था tangent पे क्वेश्चन या नॉर्मल पे क्वेश्चन जो आता है. क्लियर? क्वेश्चन रीड करो. आई नो दैट टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ज्यादा हो रहा है जस्ट रिमाइंड मी. इट इज 20 है, 10-15 मिनट है हमारे पास. सो वी कंटिन्यू विद 2 और 3 क्वेश्चंस जो हमारा एक्सरसाइज का बाकी है. The point on the curve y equal to square root of 1 minus x where the tangent is perpendicular to the line. मतलब इस कर्व की tangent इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन उस कर्व के tangent को क्या हुआ, नॉर्मल. Got it guys, what I'm saying? इस कर्व को जो tangent है y square root of x minus 1 को tangent जो है वो tangent इस 2x plus y minus 5 को परपेंडिकुलर है.
दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, यही हमारा आंसर यहाँ पे क्यों पूछा है। तो काम क्या है हमारे यहाँ पे, और पॉइंट कैसे निकालेंगे फिर जो दोनों पे आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व का स्लोप निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx, सो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये हुआ इस कर्व का स्लोप। मैंने उसे m1 कॉल किया भाई, I was call m1 the slope of curve, then slope of the line 2x plus y minus 1, का स्लोप चाहिए ना मुझे। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, बैक जाओ, हमारा जो बेसिक लिखा था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 and कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, सो -2/1 इज -2, क्लियर इट। स्लोप ऑफ लाइन वो फॉर्मूला यूज किया मैंने, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस टू लाइन, मतलब ये कर्व का स्लोप दैट इज टैंजेंट एंड कर्व की टैंजेंट एंड ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा भाई। सो m1 into m2 इक्वल टू -1, सो जस्ट वैल्यूज पुट के 1/2 squared x square equal to x minus 1 and ये -2 equal to -1, so minus become plus, 2 to gets cancel, so 1 equal to square root of 1 minus x square, squaring करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, what is the square of 1 is 1, square root का स्क्वायर it is x minus 1, square root gets cancel, so x की वैल्यू क्या आई 2, इस x की वैल्यू कर्व में पुट करो, कर्व में मतलब y equal to रूट x minus 1 में, जैसे मैंने यहाँ पे x equal to y equal to 2 minus 1, रूट x की वैल्यू 2 हुई, सो रूट 1 इज 1, सो y की वैल्यू 1 आई, सो पॉइंट कौन सा मिला हमें, it is 2 1, such type of question 100% for 2 marks. Now some derivative type of questions, very good, very interesting. ये क्वेश्चन सीईटी में भी आता है और जेडब्ल्यू में आता है भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है आगे बहुत सारे हैं, बट जितने को होंगे उतना हम लोग देखेंगे। चलो कंटिन्यू, क्वेश्चन क्या है, f of x is equal to f of x is equal to cos inverse into bracket 1 minus log x square upon 1 plus log x square। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला छुपा होगा, कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला छुपा होता है सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे गाइस, कीप इन माइंड कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन छुपे हुए, फाइंड आउट इट जस्ट ओनली, देन फाइंड एफ डैश ऑफ ई। ये क्वेश्चन सीईटी लेवल का तो है, जेडब्ल्यू लेवल का भी है, कीप इन माइंड एफ डैश ऑफ ई निकालना है, तो वो ये बाद में देखेंगे, पहले हमारा टारगेट है भाई एफ डैश तो निकालो। व्हाट इज आवर टारगेट, एफ डैश निकालो। कैसे निकालेंगे, दिस इज गिवन cos इनवर्स 1 minus log x square upon 1 plus log x square, just go through guys the standard formula, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is 2 tan inverse x है क्या, सो x की जगह पे log है, सो वैल्यू इज 2 tan inverse log x, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आई 2 tan फॉर्मूला होगा तो आंसर बहुत सिंपल है। देन डिफरेंशिएट 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus log x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x। क्लियर, मैं ओरली बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी कम है भाई, इज 1 by x, सो देयरफॉर सिंपलीफाइड इज 2 upon x इनटू ब्रैकेट 1 plus log x ब्रैकेट 1 plus log x स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, log x का स्क्वायर नहीं है, सो एफ डैश हुआ, तो हमें एफ डैश ऑफ ई निकालना है ना भाई, सो पुट x इक्वल टू ई, सो 2 as it is, x become e, 1 plus log e square, clear, log e square, log e means what, log e means 1, 1 का square is again 1, so 2 upon e into 1 plus 1, so 2 upon 2e, so that dash is 1 by e, so answer is 1 by e, clear guys। so same question again, this question is JEE I think 2013 and CET also, keep in mind it's very simple, very, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना फ्री में कोई मार्क बांट रहा है वहां पे, वैसे ये मार्क बांटे थे JEE में, आई थिंक उस टाइम JEE 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते थे आई थिंक सो, तो ये जैसा ही है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दिया, y equal to sec tan inverse then divide by dx at x equal to 1 is equal to, मतलब डेरिवेटिव at x equal to 1 के लिए। देखो चेन रूल अगेन, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एंड tan, फंक्शन कौन सा, tan इनवर्स tan इनवर्स, आया समझ में, डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेक एंड tan, सेक एंड tan, क्लियर, सेक
tan इनवर्स x into tan इनवर्स x. ये समझ में आया कैसे लिया मैंने. डेरिवेटिव ऑफ sec is sec x tan x ना. So sec function into tan function, derivative of sec, and sec tan and then tan inverse का 1/1 plus x square. So देखो ये tan inverse gets cancelled, only x रहा. ये sec tan inverse x as it is, इसका x as it is और 1/x square. But किसके लिए x equal to 1 पुट करते हैं. sec tan inverse 1 into x is 1/1 plus 1. So it is sec tan inverse 1. Tan inverse 1 is pi by 4 and this is 1/2 and therefore it is pi by 4. Sec pi by 4 is root 2. 1/2, so it is 1/2. Clear? Last sometimes remaining, so I'm just I am explaining, mostly focus on such type of question, guys. It is very, very interesting. It is if log to the base 10 x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to 2, then divide by dx. Such type of question जो मैंने वेरीज नीचे दिखे ये क्वेश्चन से, इतने टाइप के क्वेश्चन है ना, इन सारे का आंसर y by x से आएगा. आप चेक करो. All type of questions answer is y by x, answer is y by x, answer is y by x. Keep in mind. तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो या पीडीएफ में शेयर ही करने वाला हो. सारे के कैसे आएंगे सॉल्व करो. जैसे हमने बोला है, हम ये क्वेश्चन कंपेयर एंड डिवाइड से भी सॉल्व कर सकते हैं गाइस. जैसे ये सेक को इधर भेज दो, सेक इनवर्स डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. कंपेयर डिवाइड करो, इजीली आंसर आएगा. कॉस को इधर भेज दो, कॉस इनवर्स से डेरिवेटिव 0, कॉस इनवर्स भेज दिया, कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये कांस्टेंट ही है, सो अगेन 0. tan इनवर्स को ये tan होगा, अगेन 0. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही बोला था, बाद में डिस्कस करूंगा. x raised to p into y raised to q equal to x plus 5 p plus q. देखो p plus q का समेशन अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव y by x होगा. कीप इन माइंड. तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम डिवाइडेड से कर सकते हैं. तो देखो log 10 x cube minus y cube x square plus x cube plus y cube equal to 2. Clear? Log to the base 10 x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to 2. सोल्व है तो सिंपली log 10 यूज किया तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. log 10 बेस. क्लियर? तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है अभी. ये 100 है, माइनस मतलब माइनस हो जाएगा. -100 इज -99 x क्यूब और ये 101 y क्यूब. तो y क्यूब x की वैल्यू -19/1 क्यूब. मैंने इसे डिफरेंशिएट किया. -9 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. 101 डेरिवेटिव y क्यूब इज 3y स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ y इज डिवाइड बाय dx. सो -19 x स्क्वायर ये होगा 101 y स्क्वायर डिवाइड बाय dx. तो डिवाइड x इज -19/101 x स्क्वायर y स्क्वायर. सो 1901 की वैल्यूज है y क्यूब अपॉन x क्यूब पुट करो, कैंसिल होगा. सो आंसर इज y by x. सो ऑल दिस क्वेश्चन आंसर इज y by x. मैं मेन जाने वाला हूँ जो अप्रोक्सीमेशन का बाकी अभी. ये ऑल क्वेश्चन सेम गाइस, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. सब फॉर्मूलेज यूज किए जेडब्ल्यू के क्वेश्चन से. हियर अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन, ये डिग्री और ये प्रिंटिंग मिस्टेक छोड़ दो. ये देखो अप्रोक्सीमेशन, the approximate value of, किसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, f of x equal to x cube plus 5x square minus 7x x minus 7x plus 9 at 1.1 is 1.1 को अपने वैल्यू निकाली इस फंक्शन की. सो मैंने पहले बोला है 1.1 इज x y. तो a plus h के फॉर्म में a plus h इज 1 plus 0.1. So a हुआ 1, h हुआ 0.1. क्लियर? a is 1, a हुआ 0.1. वो फॉर्मूला रिमाइंड करो. ये डैश ऑफ x निकालो. क्लियर? डैश ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7. f ऑफ 1 निकाला मैंने, इट इज 8. डैश ऑफ 1 निकाला 0.06. क्लियर? 1 ये वैल्यू सिंपल निकाली मैंने. देन f of x इक्वल टू f of a plus h. f of a plus h डैश ऑफ a फॉर्मूला था. मैंने जस्ट f of 1 पुट किया, इट इज f of 1 put kya it is, f of 1 is 8 plus 0.1 is h and f dash of 1 is 6. 6 is the answer. And then degree and iska bhi question